Good evening, guys, and welcome to Success Stories episode number 18. First of all, let me wish you everyone a very happy Ganesh Chaturthi, and especially for our people who are Jain, Michhami Dukram to all of you guys. I hope all are doing great, all are doing safe, and all are enjoying their festivals with the utmost safety and same enjoyment. खाली एक कोरोना की एक तकलीफ है जो अभी भी चल रही है, कट जाएगी. अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुकी है, सो द थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल वेरी सून. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. अच्छा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग के now this time my other partner Kaushal, he is not with me right now, so actually he is Jain, so he is celebrating his festival today. So Kaushal Michhami Dukram, and again I would like to remind you that the festive season has just started. Guys, please take care, please take all the safety measures जो हम लास्ट 4-5 महीने से फॉलो कर रहे हैं, and enjoy your festival to the fullest. Coming back to today's episode, it's episode number 18, and of course हमारा एक छोटा सा टीजर इस बार आपने देखा हुआ है. You guys are also knowing कि we are having an advocate as a guest today. So thank you Pratham, thank you so much, and let me again just tell you कि lawyers, मतलब लॉयर्स हर एक सोसाइटी या हर एक डेवलप नेशन के एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. जब हम कोई लीगल टर्म्स की बात करें तो कोई भी डेवलप नेशन या डेवलप्ड इकोनॉमी जो है उसका एक जो स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, लॉयर्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑन दैट थिंग. लीगल एड जो है वो एवरी सिटीजन की राइट होती है. अगर हम देखा जाए, हमने काफ़ी सारी फिल्मों में भी देखा है कि जो कोर्ट रूम जो होता है, जो लॉयर्स की जो आर्ग्यूमेंट्स होती है, एट टाइम्स दैट टर्न आउट टू बी अ वॉर जोन. सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लॉयर्स आर द वॉरियर्स इन शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज. सो टुडे आज ऐसे ही एक वॉरियर हमारे साथ है, अ वेरी हम्बल पर्सन and a straight to point person. He is Mr. Satish Agarwal ji. Thank you. Satish ji, welcome to Success Stories. जैसे हमने इंट्रो में भी कहा था कि एक कोई भी कंट्री हो या कोई भी सोसाइटी हो तो एक लीगल स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, एंड लॉयर्स जो है दैट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू दैट पॉइंट. सो एक खाली एक जस्ट एक ब्रीफ एक अगर आप बता सके कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रोफेशन एक शॉर्ट में. See, I am into a legal profession since last 10 years. My background, actually, I am from the chartered accountant background. I began my career with chartered accountancy, but the law was my passion. Yes. So about 30 years back, while doing CA, I had joined law Siddharth College, Churchgate. But the schedule was so hectic for preparation of my chartered accountancy exam that I could not pursue my law exam at that point of time. Thereafter, I was flooded with the family responsibility, so I could never join the law in between. But finally, in the year 2007, to achieve my passion, I joined law, and in the year 2010, I completed my law. And soon after completion of my law, I entered into the legal practice. I had no problem of clientele because I was practicing as an income tax and finance consultant prior to coming into the legal field. Generally, if you see, when any person becomes a law graduate, he needs to go under training with some law firm, like other profession. But you may be surprised that I did not go to any law firm and I never worked with any lawyer. Wow.
So soon after my graduation, I started my legal practice. Now you may surprise how I came to know about the court procedure, drafting issues, and all such things. So I refer several books to get acquainted with the drafting of the legal cases, and I used to go alone to the different courts to observe the proceeding of the court. So due to my IQ, my grasping power is good, so I could understand the legal system and the court procedure and filing of cases. So gradually, I got a command on filing procedure, appearance in the court, preparation of the cases, and then gradually I became so much expert that today I have no problem. I never come across with any great difficulty to fulfill my legal obligations. राइट सतीश जी, जैसे आपने बोला कि आप पहले सीए थे एंड देन यू पिक्ड अप लॉ, राइट? सो Yes. क्या इंस्पिरेशन थी कि एक इतना अच्छा एक बैकग्राउंड जो ऑलरेडी सीए था, आई होप यू वेर जितने सक्सेसफुल आप लॉयर थे उतने ही सक्सेसफुल आप सीए रहे होंगे. सो Yes. इतना अच्छा करियर ऑलरेडी आपका सेट था, सो उसको छोड़ के यू पिक्ड अप लॉ. सो ये क्या था, ये मतलब ये डिसीजन टर्निंग क्यों था ये? नहीं, देखिए, वैसे ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आई हैड लेफ्ट लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन. आई एम गेटिंग द कंप्लीट एडवांटेज ऑफ माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन द लीगल फील्ड. सी आई हैव सीन इन द कोर्ट कि व्हेनेवर आई डील विद द कमर्शियल मैटर्स, है ना, so the opponent lawyer is not able to defeat me in all the commercial matter. My commercial knowledge, my accounting knowledge, my financial knowledge is always backing my legal knowledge, and due to which my success ratio in legal practice is too good, and that could be the one of the reason that in last 10 years, today this year I am completing 10 years in my legal practice. I have the plenty of cases in the court of law. I have the matter right from Borivali court to the high court. In all the courts I have the matter. I have a team of 12 lawyers full time working with me with 5 interns. ओके, गुड सर. सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि बीइंग इनटू एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड से एक शिफ्ट हुआ लॉ की तरफ, एंड उसके बाद भी एक इतना अच्छा होल्ड है बिकॉज जो आपका नॉलेज जो है वो आपके सही काम आ रहा है. सो ऑलरेडी एक सेट बैकग्राउंड होने के बाद सीए एक चालू था आपका, एंड देन आप एक टर्न हुए टुवर्ड्स लॉ की तरफ. तो एक जो स्टडी पार्ट जो था वो ऑलरेडी एक अकाउंटेंसी का स्टडी पार्ट जो है वो इतना हैवी होता है, एंड ऑफ कोर्स लॉ का तो एक स्टडी मटेरियल जो है इतनी मोटी मोटी सर किताबें है. तो हाउ डिड यू मैनेज टू क्रैक थ्रू दी स्टडीज एंड गेट योर लॉ? Yes. See, the most advantageous part in the completing my law graduation was that the college timing was morning 7 o'clock to 10:30. So I was able to attend the college every day, and I was a regular student. Many times I found that I am the only student in the classroom, but the professors were so good that they used to take the lecture even if I was alone in the classroom. Okay. So I never wasted my time. Whenever I found that there is no lecture in the college, I used to straight away go to the library, and I used to utilize my time for the study. Number 2, during traveling, I used to read all my law books. Then in the office, whenever I used to find the time, I used to read the books. Beyond that, Sunday I used to utilize for preparation of my law exam. So accordingly, along with my profession of chartered accountancy, along with the family responsibility to fulfill my dream of becoming a good advocate, I used to study hard for 3 years, and finally I achieved the law degree in the year 2010.
ग्रेट सर, मतलब आपने जिस तरह से समझाया है कि एक जो टाइम जो है, आप कहीं पे भी टाइम लीक नहीं होने दे रहे थे, जहाँ पे भी आपको जी मौका मिला आपने उसको परफेक्टली यूटिलाइज किया फॉर योर स्टडीज, राइट। जी सो चलो सर के सीए से हम लॉ की तरफ शिफ्ट हुए, हमने कॉलेज स्टार्ट किया, हमने स्टडीज कंप्लीट करी, हमारे हाथ में अभी डिग्री है। सो एक जी अभी ऑफ कोर्स हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसको मिल जाए एट द फर्स्ट गो क्लाइंट। तो ये जो है क्लाइंट कैसे आपने बाद में स्टार्ट किए, आपने मतलब आपके पास क्लाइंट आने कैसे स्टार्ट हुए सर? जी। एक तो देखिए कि मैं ऑलरेडी सीए के प्रोफेशन में था, तो मैं मेरे पास मतलब कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे थे। और while doing law, मतलब I used to inform my client कि now I am doing law and I may switch over to the legal profession. So people started knowing me. Number one. Number two, I started giving the free services to the society, अच्छा just to let people know that there is some lawyer like this. Right. So if you serve 10 people, you get 10 clients through them. So one has यस to सर, वर्ड become ऑफ माउथ। socially one has to become socially associated to get the client into the any of the profession, especially in the legal practice. You get the client through reference only, and your through and by seeing your achievement in the profession. सर ये मतलब सुन के अच्छा लगा कि मतलब ऑलरेडी एक जो आपका बैकग्राउंड था वो हेल्प किया आपको आपका सेकंड करियर बिल्डअप करने के लिए। अच्छा, जी लेट मी अगेन टेल यू ऑडियंस, कमेंट सेक्शन ओपन है। आपको कुछ भी सवाल आपको करने हो रिलेटेड टू लीगल या लॉ एज अ करियर, आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिए एंड वी विल मेक श्योर कि सतीश जी वुड बी एबल टू हैंडल दैट क्वेरी। अच्छा सर, yes वन मोर थिंग कि आपने जो कोई भी केस अभी आपने स्टार्ट किया तो उसकी कोई तो एक प्रिपरेशन मेथड होती है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ आया और सीधा हमने जाके जज के सामने रख दिया। तो वो एक जी प्रिपरेशन के लिए हाउ इज द एक एक जो वर्कआउट होता है, तो व्हाट मेथड डू सतीश जी फॉलो फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी केस? See now, for preparation of any case, the first step to review the case, the facts of the case thoroughly, right, and then find the remedy available under the law. Then third step, the research work. See, in my office, I have a team of, the interns, headed by semi-junior advocates. Now the team is trained in such a way that when any matter comes and explained to them and then given to them for research work, they do the research work and bring before me the legal points involved in that case. And after doing the thorough study and with the discussion with my team, in the sense that my associates, we start preparing the cases. After preparing the cases, it is thoroughly reviewed by me. And once it is reviewed by me, it is given the final aura for filing in the court. राइट That is the procedure. राइट। तो सर मतलब यहाँ पे और एक हमने काफ़ी जगह पे ऐसा सुना हुआ है, जी एक आध दो इंस्टेंसेस पे मैंने खुद ने पर्सनली भी देखा हुआ है कि जनरली जो मेन जो लॉयर्स जो होते हैं वो जी कोर्ट रूम में जल्दी प्रेजेंट नहीं होते। तो क्या ये बात सच है? To some extent, ये बात सच है that but ultimately, see, suppose I am a senior advocate in my office. The ultimately seniors are responsible even if they ask their associate to go to the court and appear in the matter, because the senior knows the capacity of each of the associate advocate working under him. So when the associate is asked to appear in some matter, then his rehearsal is taken by the senior in the chamber. And when the senior is satisfied that yes, that particular associate will be able to handle the case efficiently, then only such case is given to the associates. See, if that is not the practice, then how the junior advocate will learn the legal practice?
one day even he has to become the independent lawyer. So this opportunity has to be given to the junior lawyer so that he or she can also become an independent lawyer in future. राइट 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 सर, एक परफेक्टली एग्जांपल आपने एक्सप्लेन दिया है कि क्यों हर बार कोई जो मेन लॉयर जो है वो जरूरी नहीं है कि कोर्ट रूम में प्रेजेंट हो. अच्छा जी, सर, जी. एक ऑडियंस क्वेश्चन आया है. आपका जी. दोनों फील्ड से ताल्लुक है, अच्छा है, सीए भी आप रह चुके हैं, लॉयर भी आप जी. है अभी. सो जी. एक ऑडियंस क्वेश्चन है कि वी सी सो मेनी पीपल, एक सेकेंड, वी सी सो मेनी पीपल चूजिंग सीए और लॉयर एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, बट इन दैट केस एक जो डिफरेंशिएट जो होता है कंसिडरिंग के लिए कि भाई मैं सीए पढ़ूं या मैं लॉ पढ़ूं, तो व्हाट वुड बी अ सजेशन टू दैट? See, if someone is capable of doing both the course, then it will be very much beneficial in his professional career. Right. After doing CA, if somebody is pursuing the law and then he starts his legal practice, his success rate will be too high, and number of years, right, to become the good lawyer will be comparatively much lesser than only a lawyer. So see, the knowledge what we gain in the chartered accountancy exam is very much associated with the legal profession, because any commercial matter, financial matter, accounting matter, that ultimately helps in the legal field, because I myself is getting a lot of benefit. So I suggest if somebody has capacity to pursue both the courses, then one should pursue both the cases. If not, if somebody wants to pursue only legal profession, then he can pursue the legal profession, but one should work with a very good law firm, work hard to learn the court procedure and legal procedure. ओके ओके सर, और एक चीज हमने देखी है कि लॉयर जो है वो कोई कोई लॉयर जो स्पेशलिटी लॉयर्स है, जैसे कोई बैंक्स के जो इश्यूज है उसके रिलेटेड है, कोई क्रिमिनल है, या कोई समवन एल्स, एक फैमिली लॉयर कोई एक होता है. तो जनरली ऐसा एक पोर्ट्रे हुआ है कि क्रिमिनल लॉयर्स जो है वो काफी एक फ्लैम्बॉयंट एक लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करते हैं. तो इन रियल लाइफ में भी क्या क्रिमिनल लॉयर्स इतने ही फ्लैम्बॉयंट रहते हैं? ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कह सकते. कारण क्या है कि आप किसी भी प्रोफेशन को ले लीजिए, है ना. इन लीगल प्रोफेशन में be it a civil lawyer, be it a family lawyer, or be it a criminal lawyer, see, the lawyer is always concerned with his case, and each case is important for the lawyer. So when the lawyer is dealing with the case, he has to get into that case very deeply, and then try and see that he wins the case for his clients, and in fact not only for client, for himself also. See, if I win the case for my client, it is not the winning is for my client, it is my winning first. Yes. And that winning, yes, and through such winning I get a good reference, and my client will refer more client to me. So any advocate in legal practice will always work hard and see that his client win the case. राइट सर. ये मतलब एक जस्ट एक थॉट आया अभी कि इसके लिए मैंने जस्ट एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको मैंने सर पूछ लिया. राइट. अच्छा, एक चीज है कि ऑफ कोर्स लॉ है, हर कोई हो, चाहे वो आदमी छोटा हो या बड़ा हो, एक डर एक हमेशा रहना ही चाहिए हर किसी के माइंड में. पर कभी कभी कुछ कोई मतलब ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि पब्लिक नहीं जाना चाहती कोर्ट पे. एक डर रहता है कि एक पब्लिक का माइंड में डर रहता है कि यार नहीं यार मुझे कोर्ट में नहीं जाना है करके. तो ऐसी कोई सिचुएशन से आपने कभी डील किया है, एंड आपके सजेशंस क्या रहेंगे इस केस पे? नहीं, ये ठीक है. देखो, कोर्ट में लोग नहीं जाना चाहते, उसके 2-3 रीजन है. पहला रीजन ये है कि जो लीगल प्रोफेशन
और या लॉयर के पास जाना मतलब इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, नंबर वन। तो हर किसी के बस में नहीं होता है, दैट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू पे लॉयर, नंबर वन। नंबर टू, द पीपल थिंक दैट वंस द मैटर इज ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट, it may take any number of years. So basically, two, and number three is the personal attention in the case is required. So generally people, the client comes to us, and if it is a family matter, we always try to settle the matter amicably, having the meeting of all the family members. So we see sometimes in 25% cases, we are able to settle the matter out of the court. And finally, if we reach to the conclusion that this matter is not going to get settled amicably, then we have no option but to approach the court of law. Right. So the main reason for fearing going to the court is expensive issue. The second is it is a time consuming. And third is one has to devote time all the time in the court and in the office of advocate and all that. Right. Yes sir, correctly said again. जैसे हम डिस्कशन ले रहे हैं, थोड़े टाइम पहले आपने बोला एक केस प्रिपरेशन के टाइम पे आपने जो स्टेप्स जो बताए, एक जो हायरार्की जो आपने सेट की, एंड लास्ट में आप खुद पर्सनली हर एक केस को रिव्यू करते हैं जो भी आपके अंडर आते हैं। तो क्या इन पास्ट में ऐसे कोई केसेस रहे होंगे जो कि एक काफ़ी बड़ा ओपोनेंट या बड़ा एक जो आपके अगेंस्ट में लॉयर खड़ा हुआ होगा, एंड देन यू मैनेज टू विन दैट केस? ऐसा कोई केस आपके अभी तक स्पैन में निकला है? ऐसे काफी बार हुए हैं। मैं आपको इंस्टेंट देता हूँ कि जो आज के 5 साल पहले राधे माँ के अगेंस्ट काफी केसेस फाइल हुए थे। राधे माँ जो उनके अगेंस्ट बॉम्बे में काफी केसेज और काफी मीडिया और पेपर में इसके बारे में चर्चा आ रही थी। सो आई वाज डिफेंडिंग राधे माँ, एंड आई यूज्ड टू फेस ऑल द बिग लॉयर्स फ्रॉम द अपोनेंट साइड। राइट, अपोनेंट साइड में जैसे डोली बिंद्रा है और कई काफी फेमस हस्तियां थी जो उस केस में इन्वॉल्व थी। कुछ लॉयर भी थे उसके अंदर सामने अपोनेंट के अंदर। अब आप मानिए जब बोरीवली कोर्ट में या कहीं कोर्ट में जिनका मैटर चलता था तो उस कोर्ट रूम में पैर रखने को जगह नहीं रहती थी। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एडवोकेट्स एंड लिटिगेंट्स यूज्ड टू गैदर ओवर देयर जस्ट टू वॉच द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट इन राधेमा केस। राइट, उस केस में भी हम विन हुए उसके अंदर, और राधे माँ के ऊपर जितने भी आरोप लगे थे हमने सब आरोपों से उनको छुड़वा दिया था, और उसके बाद से उनके ऊपर कोई केस नहीं चला। इसके अलावा हमने कई कमर्शियल मैटर भी हाई कोर्ट में कंटेस्ट किए हैं, उसमें भी बॉम्बे की अच्छी लॉ फॉर्म अपीयर हुई थी, लेकिन उसके सामने भी हम केस विन कर चुके हैं उसके। राइट सर, मतलब जो जो बोलते हैं ना कि एक क्लियर विजन जो है आपके पास, और एक जो क्लियर मतलब जो बोलते हैं ना कि एक सोचने का जो एक ढंग है जो आपको ऑलरेडी एक सीए से बेनिफिट हुआ है, वो आपके प्रोफेशन में जो अभी आप जो राइड कर रहे हैं ना सर, दैट इज सर एक्सेप्शनल थिंग टू डू। तो सर मतलब आप अभी जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे ये काम क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे हर बार नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी सक्सेस स्टोरीज को जानना पसंद है। इसके लिए आई एम डूइंग दिस थिंग। यू आर अ लॉयर, तो ऑन अ डेली बेसिस अगर कुछ चीजें हैं जो एक लॉयर को पसंद आ रही है या आनी चाहिए, तो वो क्या होंगी और आपको उनमें से क्या पसंद आ रही है? देखिए, लॉयर का जो सबसे एंजॉयबल जो काम है वो एक तो है कि हर केस को विन करना पहला। दूसरा है, अगर आप पूरे प्रोसेस में देखेंगे तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज है विटनेस के, that is the best stage, because I always like to cross examine the witnesses in the court, in the witness box. I have got so much of expertise that I can bring the truth from the mouth of the witnesses by using the different tactics. Sometimes I ask the same question in different way in the different interval, so the witness forget that what answer did he give for the same question prior to that. And then when he gives the different answer to the same question, then we take the advantage in the argument of the final argument of the case.
and that get us the success to win the case. राइट राइट सर, मतलब जो बोलते हैं ना कि एक जो सच निकलवाने का एक तरीका जो होता है, आई होप जी के आपके यू हैव दैट सीक्रेट की टू गेट आउट द प्योर ट्रूथ ऑफ द केस विच यू आर डिफेंडिंग और गोइंग अगेंस्ट. सर, एक ऑडियंस क्वेश्चन आया हुआ है. जी सर, आप जब भी, जैसे आपने बोला एक राधे माँ का केस आपने डिफेंड किया था एंड यू मैनेज टू विन दैट, तो जी जब भी आपने राधे माँ का केस आपने हाथ में लिया, एट दैट टाइम जी आपको कोई माइंड में कोई डर या कोई डिफिकल्टीज एक कुछ आपने सोची होंगी कि आ सकती है इतना बड़ा एक केस हाथ में लेने के बाद? यस यस बिल्कुल, क्योंकि मुझे मालूम है कि मीडिया को फेस करना पड़ेगा. मैंने जब केस हाथ में लिया तो उसके पहले से ये मैटर मीडिया में आ रहा था, और जैसे ही मीडिया को पता चला इस केस में मैं इन्वॉल्व हुआ, मुझे मीडिया से काफी कॉल आने शुरू हो गए. लेकिन क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आई डोंट हैव टू गिव एनी इंटरव्यू बिफोर द मीडिया. ओके. तो इस तरह का हुआ. कोर्ट रूम में भी मैंने काफी फेस किया. जब ओपोनेंट होते थे उनके यहाँ से 30-30, 40-40 लोग आते थे, और ये मैटर काफी एग्रेसिवली चल रहा था कोर्ट रूम के अंदर. मतलब मैं बताऊं, कई बार तो कोर्ट को प्रोसीडिंग बंद करनी पड़ी. इस तरह का धमाल हुआ कोर्ट रूम के अंदर. फाइनली पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर हमारे मैटर का हियरिंग हुआ. हाँ, पर मैं बोल्ड ओके. था, इसलिए मुझे किसी बात का फियर नहीं था. मैं कोई भी केस लेने को तैयार हूँ, किसी भी तरह का, मुझे कोई डर नहीं. राइट. जैसे सर, मतलब ये जो आपने जो बात अभी बोली है, एक एग्जैक्टली बोलते हैं ना कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी यही बोला था कि लॉ इज अ वॉर एंड लॉयर्स आर वॉरियर्स. तो आपने यस वो जो लाइन जो है, जो परफेक्ट एग्जाम्पल जो आपने दिया है उस लाइन को सेट करके कि बिल्कुल कोर्ट प्रोसीडिंग्स जब भी स्टार्ट होती है और जब भी एंड होती है, बीच में काफी धमाल होती है. काफी हमने जी एक्चुअली टीवी पे देखा है, बट लाइव किसी लॉयर जी के मुंह से शायद हम लोग आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सर. ओके. जी जी सर, आगे लेके जाते हैं अपनी बात को कि हर किसी का कोई रोल मॉडल होता है, कुछ क्वालिटीज या कुछ जो बोलते हैं ना कि एक जो तरीके होते हैं उनके उनकी करियर में जो सेट करके चलते हैं. तो सर, आपका ऐसा जी. कोई रोल मॉडल रहा है जिनसे आप Yes, काफी ज्यादा इंस्पायर हुए? yes, my eldest brother is a chartered accountant. So he used to give me guidance throughout my life because I developed my career under his guidance. So he always used to give me the tips how to develop the contact with the people, how to behave with the people, how to make career in the profession. So my elder brother is my role model. ओके ओके ओके. मतलब आप रोल मॉडल भी घर में ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कभी भी आप उनको डिस्टर्ब कर सकते हो कि भाई कुछ इश्यूज है, प्लीज हेल्प मी आउट. Yes, ओके. yes, सर, आपने ये भी अभी एक बात बोली थी कि यू हैव अ टीम ऑफ लॉयर्स एंड उसके जी अंडर भी कुछ इंटर्न्स यू हैव. एक एक जी आपके काफी मतलब इंटर्न्स भी है आपके साथ. तो जी कोई भी बंदा आपके फर्म में ज्वाइंट होता है, चाहे वो एज अ लॉयर या चाहे वो एज अ इंटर्न, तो जी आप उनको कुछ टिप्स जरूर देते होंगे, जिनमें से एक बिल्कुल. शायद मेरे हिसाब से शायद क्या हो सकती है वो टिप? When any lawyer or intern joins our firm, first day we keep the orientation program. उसके अंदर उसको इंस्पायर किया जाता है कि लीगल प्रोफेशन कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे काम करने के तरीके क्या है ऑफिस में, और उसकी प्रोग्रेस किस तरह से होगी. मतलब इनिशियली उसको कहाँ से शुरू करना है और किस किस स्टेज से उसको गुजरना है कि वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन सके. उसके अलावा हमारे ऑफिस में वीकली मतलब एक मीटिंग होती है सभी एडवोकेट्स की. तो जिसको जो भी डाउट्स होते हैं, कोई लॉ से रिलेटेड, कोई केस से रिलेटेड या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी है, तो वो सब हम आपस में मिलकर 10-15 लोग जो होते हैं वो सब आपस में डिस्कस करते हैं और नॉलेज और जो एक्सपर्टाइज है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. इस तरह का प्रोग्राम हमने रखा है. बराबर. सर, तो हर हर को लॉ में ऑफ कोर्स एक केस स्टडी का एक बड़ा एक रोल होता है हर किसी की लाइफ, जो एक लॉयर है उनके लिए. तो कोई पर्टिकुलर केस आप हर मतलब कोई एक सिंगल केस अगर आप किसी को हर बार आप रेफर करते कि भाई देखो तुम ये केस की आप स्टडी करो,
दिस विल हेल्प यू टू एक सक्सेसफुल करियर की तरफ, दिस विल हेल्प यू टू ग्रो टुवर्ड्स। तो क्या कोई वो एक सिंगल केस कोई भी कोर्ट का हो सकता है वो, कि आप हर किसी को रेफर करने को बोलते हो कि भाई तुमको ये केस रेफर करना ही करना है बिफोर स्टार्टिंग द करियर? यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे वी डील विथ ऑल काइंड ऑफ केसेस, बीट फैमिली लॉ, बीट क्रिमिनल, बीट सिविल। तो जितने भी इंटर्न या जूनियर लॉयर है उनको हर तरह के केस से डील करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। क्योंकि हम जब ज्वाइन करते तभी हम कह देते हैं कि भाई आई डील विथ ऑल ब्रांचेज ऑफ लॉ। उनको हर तरह के केस दिए जाते हैं, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, सिविल लॉ। और फिर हमें लगता है कि ये बच्चा या ये जो इंटर्न है वो किस तरह के केस में मतलब इंटरेस्ट ज्यादा रखता है और किस तरह से केस को हैंडल कर सकता है। तो जो हम बात के केसेज उनको देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हम चूज करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर केस है, हु इज एक्सपर्ट इन दिस, तो फिर वो केस हम उसको असाइन करते हैं उस तरह के इंटर्न। हमें लगता है कोई बच्चा क्रिमिनल केस में बहुत अच्छा है तो वो क्रिमिनल केस आता है तो उसको स्टडी करने के लिए क्रिमिनल केस देते हैं। कोई सिविल में होशियार है तो उस बच्चे को सिविल केस देते हैं। कोई फैमिली लॉ के मैटर हैंडल करने में इंटरेस्टेड और हमें लगता है कि वो कैपेबल है तो उसको फैमिली लॉ के मैटर। तो इस तरह से सिग्रीगेशन ऑफ वर्क। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कुछ इंटर्न या जूनियर लॉयर जो सभी तरह के केस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको सारे केस दे देते हैं हैंडल करने के लिए, सभी तरह के केस देते हैं। ये सिस्टम रहता है। ओके ओके सर, मतलब ये अगेन ये जो बोल रहे हैं ना कि एक जो सिस्टमेटिक एक डिवीजन ऑफ वर्क, जो अगेन एक बोलते हैं ना कि सर एक लॉयर की जो हर एक जो एक एक के बाद एक क्वालिटीज जो आ रही है ना आपकी, सर आपकी बात से पता चल रहा है कि व्हाट क्वालिटीज एक अच्छे लॉयर में होनी चाहिए। वन मोर थिंग सर, के आजकल के जो बच्चे जो लॉ परस्यू कर रहे हैं या कोई भी करियर परस्यू कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज मैं लॉ की ही बात करूंगा, तो क्या वो एक स्पार्क है या क्या वो एक क्वालिटीज है जो मिस कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि नहीं भाई ये चीज तो होनी ही चाहिए हर एक जो भी ये लॉ या जो भी करियर आप परस्यू कर रहे हो उसके लिए? अब ऐसा है कि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब यहाँ पर कोई इंटर्न या जूनियर लॉ इंटरव्यू के लिए आता है तो मेरा हर एक से एक सवाल जरूर रहता है कि व्हाट आर द बुक्स यू रेफर्ड फॉर योर एग्जाम। अब वो बच्चा जब बुक्स का नाम बताया था तो मुझे आइडिया आ जाता है कि इसका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है। कोई बच्चा कहेगा मैं फलाने के नोट्स रेफर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो जो नोट्स रेफर कर रहा है वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है, लीगल नॉलेज गेन करने के लिए नहीं। तो उस जो बच्चा नोट्स से पढ़ाई करता है उसको मैं अपने ऑफिस में लेता ही पहले। जो बच्चा मुझे कहता है कि मैं टेक्स्ट बुक रेफर करता हूँ तो मैं बुक्स का नाम पूछता हूँ उसको, जवाब दे रहा है या झूठ बोल रहा है। तीसरी बात मैं उसको पूछता हूँ हमेशा एक सवाल कि विच इज द सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट। कोई बोलेगा सर क्रिमिनल लॉ। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में आपको सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है? बोले ये। तो मैं उसको जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो उसी के ऊपर पूछता हूँ, जिससे मुझे आइडिया आ जाता है कि इसने लीगल नॉलेज को अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। Because I don't want the people in my office who just pass the exam for the sake of obtaining the degree. I want advocate or associate in my office who really have gained the legal knowledge. तो वो हमारे एक इंटरव्यू का क्राइटेरिया रहता है और उस तरह से हम स्क्रूटनी करके रहते हैं। आज मोस्टली मेरे ऑफिस में 90% जो एसोसिएट्स और इंटर्न हैं वो सब कॉलेज टॉपर और स्कॉलर है। वाह सर, एक ऑडियंस क्वेश्चन भी आया है एंड ये मेरा भी थोड़ा क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आपको ये भी चीज़ मतलब डिस्कस करने का, बट ऑडियंस से आया तो थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस आया है आपके साथ ये बात रेज करने का कि आजकल सुशांत सिंह राजपूत का केस मतलब हर किसी की जुबान पे है, जो भी हुआ तो आपका उसमें अगर उसमें कुछ रिव्यू होता है तो क्या होना चाहिए आपका रिव्यू उस केस के लिए? नहीं, रिव्यू का तो ऐसा है कि ये केस तो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी भी कोई ठोस रिजल्ट सामने आया नहीं है, इसलिए जो भी इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो पेपर में हर दिन अलग अलग आ रहे हैं, न्यूज में आप देख रहे हैं कभी क्या आ रहा है कभी क्या आ रहा है करके। इसलिए कोई भी मतलब
इसके ऊपर कोई ओपिनियन देना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट ओके. We have yet Okay. to wait for the report of the agency to come in knowledge. Then only some review can be or some opinion can be given. राइट. ओके सर, मतलब अभी जो कोई पुराने टाइम से होगा, जो अभी हमारी अगर बात सुन रहा है, जिनके साथ मैं कभी भी बात करता हूँ रिलेटेड टू जी. लीगल नॉलेज, तो हमेशा बोलते हैं ये आदमी बैरिस्टर है था, ये आदमी बैरिस्टर है, एंड व्हाट वी इन जनरल टर्म्स यूज इज लॉयर. तो Right. एक मिथ क्या लॉयर एंड बैरिस्टर में कोई डिफरेंसेस है? कौन हायर है और कौन लोअर है, अगर कोई डिफरेंस है तो? नहीं, डिफरेंस नहीं है इसके अंदर. देखिए, यूके के अंदर लॉयर को बैरिस्टर कहते हैं. आपने सभी को मालूम होगा कि जैसे अपने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो है, उनके लिए हमेशा बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, राइट. परंतु प्रैक्टिकली वो लॉयर थे. राइट. अपने इंडिया में हम लॉयर बोलते हैं, कितने कंट्री में उनको अटॉर्नी भी कहा जाता है, और यूके में इनको बैरिस्टर कहा जाता है. अच्छा, ओके, फाइन. यूएसए में अटॉर्नी कहते हैं, यूएसए में अटॉर्नी कहते हैं, अपने इंडिया में लॉयर कहते हैं. ओके. अब मैं आपको एक बेसिक बात बताऊं कि लॉयर और एडवोकेट ये दो टर्म है. इस दोनों में भी फर्क है. अभी ये सवाल कईयों के मन में आ सकता है कि कौन लॉयर है और कौन एडवोकेट है, क्या फर्क है. तो जब आप लॉ ग्रेजुएशन करते हो और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब सनद नहीं लेते बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल से, तो आप लॉयर है. एट द डे यू ऑब्टेन द सनद टू कम इनटू लीगल प्रैक्टिस, यू आर कॉल्ड एडवोकेट. तो ये फर्क है दोनों टर्म के अंदर. राइट. अच्छा सर, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है ऑडियंस से कि व्हाट डू यू थिंक इज मोर बेटर वर्किंग, कोर्ट में एडवोकेट या कॉर्पोरेट या बैंक या एनबीएफसी? अगर कोई लॉयर है तो कोर्ट में वर्क करना ज्यादा अच्छा रहेगा या बैंक या एनबीएफसी में वर्क करना ज्यादा अच्छा रहेगा? ठीक है, ऐसा है कि लीगल प्रैक्टिस बहुत लिक्रेटिव है. अगर आप हार्ड वर्किंग है और आप बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो लीगल प्रैक्टिस या लीगल प्रोफेशन से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है. ये प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टफुल है. तीसरा है, आप अपने टाइम के हिसाब से क्लाइंट को टाइम दे सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से. आपको कोई टर्म डिक्टेट नहीं कर सकता. अगर आप अच्छे लीगल प्रोफेशनल है तो आप किसी को भी अपना टर्म डिक्टेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कोर्ट. एक बात. दूसरी बात है, अगर किसी को पीसफुल लाइफ चाहिए कि 8 घंटे काम करने का है, तो देन सच पर्सन हैज टू चूज द कॉर्पोरेट और सम बैंक. परंतु अगर कोई इंथुजिस्टिक है, लॉ जिसका पैशन है, उसको लीगल प्रैक्टिस में आना चाहिए. क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो तो यू लूज द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द कोर्ट. आपको खाली एग्रीमेंट मीटिंग करने के लिए या ड्राफ्टिंग करने के लिए दिया जाता है कॉर्पोरेट के अंदर, लेकिन कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के बाद उसको कोर्ट में जाने की अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका काम है एग्रीमेंट मीटिंग करना या एग्रीमेंट या छोटे एफिडेविट बनाने का, यही काम वो. और ये स्टीरियोटाइप वर्क है. अगर आप किसी भी ओके सर, पिक्चर में भी देखा है सर. अभी मुझे तो कभी मौका नहीं मिला कोर्ट में जाने का, बट पिक्चर में जनरली ये देखा हुआ है कि कुछ भी प्रोसीडिंग्स कोई भी विटनेस के साथ स्टार्ट करते तो सबसे पहले उसको गीता पे हाथ रख के कसम खवाते हैं, राइट? के जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे. तो फर्स्ट, क्या ये बात सही है कि ये चीज होती है? फर्स्ट एंड सेकंड, क्या ये प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया में ही होती है या वर्ल्ड ओवर में होती है? देखिए, ये आप फिल्मों में जो कोर्ट रूम देखते हैं या कोर्ट प्रोसीडिंग देखते हैं, और जो रियल लाइफ में जो कोर्ट रूम है या कोर्ट की प्रोसीडिंग है, दोनों में बहुत फर्क है. उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते. लेकिन आपका एक क्वेश्चन है कि ओथ का सिस्टम है रियल लाइफ में, रियल कोर्ट में ओथ का सिस्टम है, और वहां पे हाथ में गीता की बुक नहीं दी जाती है. हाथ में गीता की बुक नहीं दी जाती है, परंतु उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा. इस तरह का स्टेटमेंट उससे लिया जाए.
इस तरह के स्टेटमेंट्स सिर्फ इंडिया में ही ये प्रैक्टिस है, ये ऐसे स्टेटमेंट लेने की, या वर्ल्ड ओवर में कुछ अलग प्रैक्टिस है? नहीं, ये वर्ल्ड में सब जगह, इनफैक्ट हम तो फॉलो कर रहे हैं दूसरी कंट्री के लॉ। ओके, तो हमने वहीं से सीखा है कि ओथ का भी सिस्टम। राइट राइट सर। मतलब लास्ट शायद आधे पौने घंटे से हम बात कर रहे हैं, और जिस हिसाब से आपने एक जो ग्राफ बताया आपका, राइट फ्रॉम चूजिंग अ सेकंड करियर, वहाँ से उसकी प्रिपरेशंस करके सक्सेसफुली आज यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। अच्छे अच्छे आपकी बिग लिस्ट है आपकी क्लाइंट्स की, अच्छी तरह से आप हर आपके अंदर जितने भी बच्चे आते हैं उनको आप प्रॉपर वे में नर्चर कर रहे हैं। तो सर आपके कोई करंट प्लान्स, हमने थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी आपके बारे में, हमें पता चला कि आप यूट्यूब में भी एक छोटे छोटे एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप डालते हैं। तो सर एक उसके ऊपर कुछ एक बात हो जाए सर, कि एक एग्जैक्टली क्या मोटिव है उस यूट्यूब में वीडियो अपलोड डालने का? देखिए, मैं अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड था तो टाइम मिला मुझे। जब टाइम मिला तो हमने एक सोचा कि चलो कुछ करना चाहिए। तो हमने एक सोचा कि चलो अपने यूट्यूब पे अपना एक लीगल नॉलेज का, जो आम पब्लिक को जो कंफ्यूजन रहते हैं लॉ को लेकर के, उस तरह की वीडियो बना करके, है ना, और सिंपल भाषा में और यूट्यूब पर अपलोड करने चाहिए, और सोशल मीडिया पे उसका थोड़ा पब्लिसिटी करना चाहिए, जिससे लोगों को लीगल नॉलेज की जानकारी हो। हमने वो वीडियो में ये भी कहा है कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई सवाल है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं उसको यथासंभव असिस्ट करूंगा, जिसके लिए मैं कोई फीस चार्ज भी नहीं करूंगा। तो बेसिक आइडिया ये वीडियो बना के अपलोड करने का, ये मतलब आप कह सकते हैं ये सोशल सर्विस ही है, बाकी कोई इसके ऊपर दूसरा कोई मॉनिटरी मोटिव नहीं। राइट, बेसिकली एक जो एक अवेयरनेस जो है अपनी लॉ के लिए, वो एक आप एक क्रिएट करा रहे हैं हर किसी के अंदर। अच्छा सर, जो हमने सोसाइटी से सीखा है हम सोसाइटी को वापस देना चाहते हैं। हाँ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की आप एक फर्ज जो है अदा कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल। सर आपके कोई करंट और फ्यूचर प्लान्स के ऊपर आप कुछ बात अगर शेयर करेंगे? ऐसा है कि एथिकली किसी क्लाइंट का नाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्क्लोज करना मतलब अगेंस्ट द एडवोकेट एक्ट है, लेकिन फिर भी मैं हाँ नहीं, मतलब अभी जैसे आपने सोचा कि मैं लॉकडाउन है तो उसका सही टाइम यूटिलाइज करके मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं, तो उसी तरह का कोई एक्टिविटीज आपने सोची है कि भाई सोशल मीडिया हो गया, बट और कोई एक्टिविटीज जहां से मैं समाज का कुछ भला कर सकूं, इस तरह के कोई करंट या फ्यूचर प्लान्स है आपके? अभी समाज का भला करने के लिए हमने एक ऑफिस में एक नया काम शुरू किया है। हम ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है और जो सोसाइटी बायलॉज है, अब आप देखेंगे बॉम्बे में लाखों सोसाइटियां है और कई तरह के डिस्प्यूट उनके मेंबर्स और मैनेजिंग कमेटी के बीच में डिस्प्यूट होते रहते हैं। लेकिन जो भी सोसाइटी को चलाने वाले चेयरमैन, सेक्रेटरी या मैनेजिंग कमेटी के जो मतलब ऑफिस बेयरर्स है, उनको लीगल नॉलेज नहीं होता है। तो हम एक यहाँ पर मटेरियल मतलब कलेक्ट करके और उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख करके क्वेश्चन और आंसर बना करके हम फ्री मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्लान है। उस पर हमने ऑलरेडी वर्क शुरू कर दिया। हमारे जूनियर एडवोकेट और इंटर्न काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और हम शुरू में एक सबक को लेंगे और उसकी कॉस्ट करने के लिए हम उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज करेंगे, जिससे कि सोसाइटी के ऑफिस बेयरर को वो मैगजीन फ्री में मिल सके। तो वो हमारा एक प्लान है जिस पर हमने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। हम शुरू में हमने 1 लाख मैगजीन बना करके 1 लाख सोसाइटी में भेजने का प्लान तैयार किया है, और बाद में उसका रिस्पांस आने पर आगे का हम देखेंगे किस तरह से क्या करें। तो वो हमने एक काम हाथ में लिया है। ये मतलब ये एक जो एक मास मूवमेंट जो आपने जो इनिशिएट किया है, एक अवेयरनेस के पार्ट पे, दैट इज अगेन अ कमेंडेबल थिंग, क्योंकि ये मतलब हर एक मेंबर, अभी मैं भी मेरी बिल्डिंग में मेंबर हूँ, ऐसी सब छोटी मोटी चीजें मैं भी लगभग डेली बेसिस पे फेस करता हूँ, बट
एक्चुअली उस प्रॉब्लम पे एड्रेस होता है, इस बात को देखकर मुझे भी कुछ मतलब आई एम ऑल्सो फीलिंग एनलाइटन कि भाई ये है छोटी तकलीफ पर तकलीफ है विच नीड्स टू बी तकलीफ है। सॉर्टेड। तो हाँ, Yes. विच नीड्स टू बी सॉर्टेड एंड दैट इज द एक जो बोलते हैं ना बैंग ऑन थिंग है जो आपने एक सोचा है और जो आप ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हो। वी विश यू के आपको इसमें ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिले एंड इफ पॉसिबल एनी टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन सक्सेस स्टोरीज अगर उस पर कर पाए तो डेफिनेटली वी वुड बी वेरी हैप्पी टू डू, बिकॉज हम भी एक वही ट्राई कर रहे हैं कि जो हमने समाज से सीखा है वही हम समाज को वापस दें सर। वापस दें। मतलब यस, तो वही एक डिस्कशन यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम का एक जो टाइम फ्रेम है वो भी खत्म होने आ रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। बाकी काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है आपके साथ। ऑडियंस ने भी आज Thank you. बहुत अच्छे और काफी इंफॉर्मेटिव एंड काफी इंटरेक्टिव सवाल किए हैं आज ऑडियंस ने भी। तो थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल एंड इंटरेक्टिव ऑडियंस। एंड एक जो बोलते हैं ना कि लॉ इज वैल्यूएबल, वो वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि हर किसी का एक राइट है उसके लिए। एंड सतीश जी जो काम कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, वो डेफिनेटली उस चीज को हर बार सच साबित करता है कि यस, लॉ इज वैल्यूएबल, लीगल एड हर किसी का हक है एंड उसके ऊपर हर किसी को ध्यान देना चाहिए एक अच्छा और सुनहरा सोसाइटी और भविष्य बनाने के लिए। थैंक यू सतीश भाई फॉर चूजिंग सक्सेस स्टोरीज। आपकी दो बात रखने के लिए आपने हमें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड वी विश कि आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहे एंड ऐसे ही आपका नाम और दो बोलते हैं दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते रहे। ऐसे ही हमारी Thank you so much. Thank you so विशेष much. है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपका। ऑडियंस and audience, once again thank you for coming live with us today again, and thank you for giving all the support and showing all the love. So keep liking, sharing and subscribing Success Stories. Thank you so much. Thank you Satish ji. Thank you. Thank you.